Good morning, class. Welcome to IRS online classes. And you are in class 8. I am going to explain you English. I need you lesson 3, glimpses of the past. Now, before it, in part first, you have got the explanation of first and second topic, page number 36 and 37. Now, I am going to start from page number 38. British rule 1765 to 1836. Religious leaders preached ideas like untouchability and the child marriage. Anyone who crosses the sea loses his religion. All the misery in the world is due to women. The truth was the Indian had not self-respect. The British scorned them. The natives are unworthy of trust, incapable of honesty. True, your honor, but I am honest. Being merchants, the British wanted quick profit. Their heavy taxes forced farmers to abandon their fields. But your men are taking all my crop. You are still in arrears. If you don't pay next week, I will send you to jail. Still, the British invented other methods which gave them more profits. The goods manufactured in England should not have any import duty when brought into India. A good idea. The East India Company's laws began to cripple India's Indian industries. The British policies ruined the export artisans and their business. Now, just get the explanation. Page number 38. British rule. Religious leaders praised ideas like untouchability and child marriage. So many Indian religious preachers were there. वो उपदेशक थे, जो भारतीय उपदेशक हुआ करते थे, वो अपने लोगों को, इंडियन को तरह तरह की बातें, उन्हें सामाजिक उत्थान के लिए उन्हें समझाया करते थे, बताया करते थे. तो they preached ideas like untouchability and child marriage. They started to tell them that child marriage, they preached the ideas of child marriage and untouchability. कुछ बुराइयां भी हमारे यहाँ थी, means you can say the bad habits that we had from in our custom since long time. So those preachers those were not social reformers. Those preachers, those teachers, they were just making us कि we should follow those ideas, means untouchability. ब्राह्मण है, उन्हें दूसरे को टच नहीं करना है. चाइल्ड मैरिज हमारा कस्टम है, उसे हमें करना ही करना है. तो these were just bad habits, means you can say the bad traditions that we were following, and these were not good for our society at that time. At the same time, one teacher is preaching that anyone who crosses the seas loses his religion. Anyone who crosses the seas means anyone who is leaving his country, India, and going to another country, crossing the sea, तो he will just lose his religion. वो अपने धर्म को छोड़ देगा, उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा अगर कोई समुद्र को पार करके किसी दूसरे देश में जाता है. And second was saying कि all the misery in the world is due to women. इस संसार के सारे कष्ट औरतों के कारण हैं. Means all the misery means होता है pain, problems, कष्ट, जो भी समस्याएं हैं, जो भी कष्ट हैं इस संसार में, वो सारी समस्याएं औरतों के कारण, ड्यू टू मींस द वुमेन आर रीजन ऑफ दोज पेन, दोज मिजरीज. सो दिस वर नॉट गुड थिंग फॉर आवर सोसाइटी. सम टीचर्स वर just like this also, that they were just misleading us, misguiding us, not giving us fact. The truth was that Indian had low self-respect. Now the lesson says that the truth was, means the fact at that time was कि we had lost our self-respect. हमने अपने self-respect means होता है आत्मसम्मान. हमने अपना आत्मसम्मान खो दिया था, हमने अपना आत्मसम्मान छोड़ दिया था, हमारा आत्मसम्मान समाप्त हो चुका था. The British scorned them and British started to cheat us, means all the people. Now they were saying, the one British is saying to another कि natives are unworthy of trust. The natives means the people, the Indian are unworthy of trust. They are not believable. They are unbelievable. उनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, विश्वास नहीं किया जा सकता. They are not worthy of trust. विश्वास के योग्य नहीं हैं. Incapable of honesty, and they are not
they are not honest also, they are not honest, मतलब वो ईमानदार भी नहीं है, ना वो विश्वास के योग्य है और ना ही ईमानदार है. True, your honor, but I am honest. But one Indian says at the from the back that your majesty, sir, I am honest and I am worthy of trust. Sir, मैं तो trust के योग्य हूँ and I am honest, मैं ईमानदार हूँ. You can believe on me. Being merchant, the British wanted quick profit because the British East India Company came in India to trade. For trade means they wanted to make the profit. Means huge profit from our country. So they were traders and they wanted more profit. They wanted to get the profit quickly. जल्दी से उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ चाहिए था, फायदा चाहिए था. Their heavy taxes forced farmers to abandon their field. Now their heavy taxes, they just applied heavy taxes on the farmer, on Indian farmers, and like this means due to this the Indian farmers were in debt and they were just leaving their field. They were not able to do the cultivation. They were not able to continue their cultivation. वो cultivation नहीं कर पा रहे थे, farming नहीं कर पा रहे थे, उन्हें अपने खेतों को छोड़ देना पड़ रहा था. One farmer is saying to the British that, but your men are taking my all crop, all my crop. Your men are means आपके जो लोग हैं ब्रिटिश है या आपके यहाँ के लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, दे आर टेकिंग अप माई ऑल द क्रॉप, दे आर टेकिंग अप माई ऑल द क्रॉप, मेरी सारी फसलें उठा ले जा रहे हैं. तो व्हाट आई विल डू देन? नाउ द ब्रिटिश इज आंसरिंग कि यू आर स्टिल इन एरियर्स. एरियर्स मींस इन डेब्ट, बकाया, भुगतान, कर्ज, तुम अभी भी बकाये में हो. द मनी दैट यू हैव टेकन फ्रॉम मी, फ्रॉम आवर कंपनी, तो नाउ यू आर इन एरियर, अभी तुम्हारा भुगतान बचा है, अभी तुमको भुगतान करना है, बकाया तुम्हें चुकाना है. सो आर मेन आर टेकिंग अवे योर क्रॉप्स, इसलिए वो अब तुम्हारे क्रॉप्स को लेकर जा रहे हैं मेरे आदमी. इफ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक, if you are not paying in next week, तो I will send you to jail. You will be sent to prison. तुम्हें जेल में भेज दिया जाएगा अगर तुम उसको नहीं चुकाते हो, तुम अपने बकाये को, अपने कर्ज को नहीं चुकाते हो, तो तुम्हें जेल में अगले हफ्ते भेज दिया जाएगा. Still, the British invented other methods which gave them more profits. Now, after doing these things, the British were inventing day per day the new method. They were just bringing new method. They were bringing new rules, new regulations to exploit us. वो हमें हमारा शोषण करने के लिए नए आइडियाज लेकर आते थे, नए रूल रेगुलेशन लेकर आते थे, नए मेथड, नए तरीके अपनाते थे, which gave them more profit, by which they could get more profit, ज़्यादा फायदा उनको हो सके. Now one British says to another British, means they are making the plan, they are saying कि the goods manufactured in England, we are taking the raw materials from India and taking it to England and making the product, and after that bringing again into India to sell them at high cost. तो वो क्या करते थे, हमारे यहाँ से सस्ते दाम पर, या वो हमारे यहाँ से कच्चे माल लेकर जाते थे और इंग्लैंड में उसको रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाते थे और फिर से इंडिया में लाते थे सेल करने के लिए, ताकि उनका व्यापार ज़्यादा चले, उनको ज़्यादा फायदा मिले. So they are saying कि the goods manufactured in England should not have any import duty. Import duty लगती है जब किसी भी दूसरे कंट्री से कोई भी सामान किसी दूसरे कंट्री में आता है, तो जिस कंट्री में सामान आता है वहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है. आप उस सामान को लाने के बदले टैक्स देते हो आप. बट दे सेड दैट नो इंपोर्ट ड्यूटी शुड बी अप्लाइड ऑन दोज मटेरियल्स, दोज प्रोडक्ट्स व्हिच आर ब्रॉट फ्रॉम इंग्लैंड. इंग्लैंड से आने वाले सामान पर किसी तरह का कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगना चाहिए, किसी तरह का टैक्स नहीं लगना चाहिए, ताकि सारे ब्रिटिश को फायदा हो व्यापार में. When brought into India, जब भारत लाए जाए तो उन पर कोई टैक्स नहीं लगे. तो सेकंड पर्सन इज सेइंग, सेकंड ब्रिटिश इज सेइंग अ गुड आइडिया, मींस बहुत अच्छा विचार है, योर प्लान इज वेरी गुड, योर मेथड इज वेरी गुड, नाउ वी विल गेट मोर प्रॉफिट. The East India Company's laws began to cripple Indian industries. Now कुचलना, क्रश करना. Now these methods, these rules, these regulations started to crush Indian industries. अब भारतीय उद्योग को उन्होंने कुचलना शुरू कर दिया था, नष्ट करना. They began to destroy Indian industry. जो भारतीय उद्योग थे उनको नष्ट करना स्टार्ट कर दिया. The British policies ruined the expert artisan and their business. Artisan means कारीगर, कामगार, workers. You can say
वेल वर्कर्स और यू कैन से स्किल्ड वर्कर्स, कुशल कारीगर जो हुआ करते थे, आर्टिसियन कारीगर कहलाते थे। तो these rules started to exploit these rules started to destroy Indian artisans means skilled workers and their businesses, और उनका बिजनेस भी तबाह होने लगा। जो काम वो हाथों से करते थे, हाथों से बनाते थे, उस सामान को इंडियन मार्केट में सेल करते थे और उससे कुछ प्रॉफिट लेते थे इंडियन आर्टिसियन। अब वो सारे सामान ब्रिटेन से बनकर आने लगा, इंग्लैंड से बनकर आने लगा, और भारतीय कारीगरों के हाथ बेकार हो गए, उनके काम बेकार हो गए और उनको फायदा मिलना बंद हो गया, उनका बिजनेस खत्म हो गया। नाउ पेज नंबर 39, टॉपिक 4, राजा राममोहन राय 1772 to 1833। Raja Rammohn Rai, a learned person from Bengal, understood what was wrong with the country. Raja Rammohन Rai was a social reformer of India. He wanted to uplift India. वो भारत को ऊपर उठाना चाहते थे, अपनी कंट्री को ऊपर उठाना चाहते थे। He loved his country, so he understood that what was the problem. What was the problem actually in our country? हमारे देश की वास्तव में समस्या क्या थी? He was a learned person from Bengal. बंगाल के वो एक educated person थे, learned शिक्षित व्यक्ति थे। He said to his people that let us not despise ourselves, let us not quarrel with us, let us not despise, let us not be हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें एक दूसरे के साथ बात नहीं करनी चाहिए। Our ancient culture is great. हमारी प्राचीन संस्कृति महान है। कल्चर मीन्स संस्कृति, हमारी संस्कृति महान है। जो हमें संस्कृति मिला है, जो हमें कल्चर, हमारा प्राचीन कल्चर, जो एंशियंट कल्चर हमारा चला आ रहा है, दैट इज रियली ग्रेट एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स एंड वी कैन गेट बिग थिंग्स, बिग अचीवमेंट्स, वी कैन अचीव बिग अचीवमेंट्स। अचीव मीन्स होता है ग्रहण करना, अचीवमेंट्स मीन्स होती है उपलब्धि। हम बड़ी बड़ी उपलब्धियों को हासिल कर सकते हैं। वी कैन गेट बिग अचीवमेंट्स, बड़ी बड़ी उपलब्धियां हम हासिल कर सकते हैं। We must first reform our society. Formation means होता है बनाना, रिफॉर्मेशन फिर से बनाना, पुनर्निर्माण करना, रीबिल्ड करना। तो राजा राममोहन राय said that we have to rebuild our society. हमें अपनी सोसाइटी को रीबिल्ड करना है, फिर से बनाना है। Because so many types of customs are bad customs are here, untouchability, child marriage and so other. बहुत सारी तरह की हमारे यहाँ बैड कस्टम्स है, बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उन्हें हमें दूर करना है, भगाना है। अपनी सोसाइटी को हमें रिफॉर्म करना है, फिर से बनाना है। सुपरस्टिशंस हैव बीन ड्यूरिंग अस, जो पुराने रीति रिवाज हैं, कुरीतियां हैं, वो हमारे समाज को बर्बाद कर रही हैं। दे आर डिस्ट्रॉइंग आवर सोसाइटी, ruining our society. Ruining means destroy, नष्ट करना। He told his wife Uma, his wife name was Uma, उन्होंने अपनी पत्नी उमा से कहा कि cows are of different colors. Cows are of different colors. You may see different cows of colors in the society. तुम समाज में अलग अलग तरह की गायों को देख सकती हो। They are of different colors. वो अलग अलग रंग की हैं। But the color of their milk is the same, white. But the color of their milk, लेकिन उनके दूध का रंग केवल सफेद है। Either they are red color cow, black color, brown color, white color, whatever color the cows have, but their milk is same, white color. Different like that. He gave the example. उन्होंने उदाहरण दिया कि अलग अलग गायों के रंग अलग है, पर उनके दूध का कलर सेम है, उनके मिल्क का कलर सेम है, व्हाइट कलर है। Like that, but different teachers are teaching differently. They have their different opinions. उनकी राय अलग अलग है, उनके विचार अलग अलग हैं, but the essence of every religion is same. लेकिन उनके धर्म के जो मूल तत्व है, essence है, मूल है, that is same, वो एक है। That means they were saying God is one. All the teachers were saying God is one. Respect to others. Just be helpful to others. दूसरों का सम्मान करो, दूसरों के लिए परोपकारी बनो, दूसरों के लिए मददगार बनो। ये सारी चीजें सारे टीचर्स बोलते थे, भले ही वो अलग अलग धर्म के हों। He was attracted by science and modern knowledge. राजा राममोहन राय was attracted by science and modern knowledge. आज के ज्ञान, आधुनिक ज्ञान, जो आज की चीजें ब्रिटिश लेकर आते थे, उनसे और साइंस, दो विज्ञान से, दोनों से वो अट्रैक्टेड थे। मींस ही वाज इम्प्रेस्ड विद बोथ द थिंग्स एंड ही वांटेड टू गिव द नॉलेज टू ईच एंड एवरी सिटीजन, ईच एंड एवरी इंडियन। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। ही टोल्ड टू पीपल, लोगों को उन्होंने बताया, जो भ्रांतियां फैलाते थे, कुरीतियां फैलाते थे समाज में, उनको बताया कि
knowledge should be practical and scientific. Whatever knowledge you are providing to others, whatever knowledge you are getting from any person, that must be practical and साइंटिफिक. वो साइंटिफिक होना चाहिए, वैज्ञानिक होना चाहिए, उसका तथ्य होना चाहिए. एंड दैट मस्ट बी प्रैक्टिकल ऑल्सो, नॉट थ्योरिकल. Practical means he told कि you are saying, one teacher is saying that if you cross the sea you will lose your religion. अगर आप नदी को समुद्र को पार करते हो तो अपने धर्म को खो दोगे. तो साइंटिफिक तौर पर कहाँ सही है? The people who are crossing the sea, how they are losing their religion? वो अपना धर्म कहाँ खो रहे हैं? So he told them, all the people, that your knowledge should be practical and scientific. He started newspapers, but the suspicious British stopped them in 1823. He started newspaper. उन्होंने लोगों को जानकारी देने के लिए न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया. समाचार पत्र का प्रकाशन. He published different newspapers, but suspicious means संदेह से भरे हुए. Doubtful British stopped them in 1823. 1823 में ब्रिटिश ने उन्हें बंद करा दिया कि आप न्यूज़पेपर नहीं पब्लिश कर सकते हो. He crossed the sea. इस मिथक को भी तोड़ने के लिए कि if anyone is crossing the sea तो he is just losing his religion. He crossed the sea. उन्होंने समुद्रों को भी पार किया. समुद्रों को पार किया and went to England, and he went to England also. He reached England. इंग्लैंड पहुंचे to see what made the British powerful. They wanted to get the knowledge, get the fact, get the data that how British are more powerful than Indian. There he told them, वहाँ उन्होंने बताया, ब्रिटिश से बात किया, उन्होंने कहा कि we accept you as rulers. हम आप लोगों को, means we all Indian are accepting you as rulers. हम सारे इंडियन, आप सारे ब्रिटिश को रूलर्स की तरह एक्सेप्ट कर रहे हैं. You can be our rulers, and you must accept as us as subjects, your subjects. Subjects means प्रजा, people. लेकिन हमें भी अपनी प्रजा की तरह आपको स्वीकार करना होगा. अगर हमने आपको अपने शासक की तरह एक्सेप्ट किया है तो आपको भी हमें अपनी प्रजा की तरह, अपने लोगों की तरह एक्सेप्ट करना होगा. डोंट बिहेव अस डिफरेंटली. हमारे साथ मतभेद मत करिए, अलग व्यवहार मत करिए. बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पांसिबिलिटी अ रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट, बट यू हैव टू फॉलो दोज रिस्पांसिबिलिटीज दैट अ रूलर मस्ट फॉलो विद देयर सब्जेक्ट्स. जो शासक को अपनी प्रजा के साथ जिन जिम्मेदारियों का पालन करना होता है, दैट यू हैव टू फॉलो, दैट यू आल्सो मस्ट फॉलो. आपको भी फॉलो करना होगा, निश्चित रूप से करना होगा. दिस राम मोहन राय टोल्ड टू ब्रिटिश. वहाँ उन्होंने ब्रिटेन में जाकर बात किया, इंग्लैंड में जाकर ब्रिटिश से बात किया. नाउ पेज नंबर 40, ऑपरेशंस, विद्रोह, किस तरह के विद्रोह हो रहे थे 1765 to 1835. बट द ब्रिटिश कंटिन्यूड टू ऑपरेस इंडियंस. दबाना, किसी को दबाना, किसी को जरूरत से ज्यादा उसको एक्सप्लॉइट करना. बट द ब्रिटिश कंटिन्यूड टू ऑपरेस इंडियंस, बट ब्रिटिश कंटिन्यूड देयर मेथड्स, देयर रूल्स. दे डिडंट चेंज देयर बिहेवियर. उन्होंने अपना व्यवहार नहीं बदला. उन्होंने भारतीयों को एक्सप्लॉइट करना, उनका शोषण करना जारी रखा. इन 1818 they had passed regulation third. One regulation was passed that is named regulation third. थर्ड रेगुलेशन नाम से एक रेगुलेशन वो लेकर आए, एक नया रूल लेकर आए. अंडर इट एन इंडियन कुड बी सेंट या कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट. ट्रायल मींस मुकदमा. एनी इंडियन कुड बी सेंट टू जेल, एनी इंडियन कुड बी सेंट टू प्रिजन विदाउट एनी ट्रायल इन द कोर्ट. कोर्ट मींस, कोर्ट आप जानते हो दरबार, लेकिन अ कोर्ट मींस वेयर द जज इज सिटिंग एंड एडवोकेट्स आर जस्ट putting their means just involving themselves in trial, जिसमें वो मुकदमे में अपने को इन्वॉल्व करते हैं. ठीक है, वो अपने लोगों की तरफ से बहस करते हैं बिफोर द जज. सो विदाउट एनी ट्रायल एनी इंडियन कुड बी सेंट टू जेल, एनी इंडियन कुड बी सेंट टू प्रिजन. किसी भी भारतीय को जेल में भेजा जा सकता था. दिस वाज अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन थर्ड. All the time British officers in India drew big salaries and also made fortunes in private businesses. Now they started to do some other thing also. East India Company was doing the business here, trade here, and after that they became ruler in India. And after that one more thing, different British started their own businesses, means their own trade. उन्होंने अपने अपने पर्टिकुलर, आप कह सकते हो कि पर्टिकुलर व्यापार उन्होंने करने शुरू कर दिए. Someone opened a showroom, someone opened a shop, someone started to bring the material from Britain, means from England, and started to sell in the country, in India.
So like this, they started their own business. They started to get means own business and started to take the profit. Now and one more thing कि they drew big salaries in India, और भारत में आकर वो इंडिया में आकर बड़ी बड़ी सैलरी मतलब अधिक सैलरी लेते थे. By 1829, British was exporting British goods worth 7 crore rupees to India. By a fact, this is the knowledge, this is the fact you can get कि by 1829, 1829 तक, 1829 तक, the British were exporting the British goods worth 7 crore rupees to India. उस समय में, प्राचीन समय में, उस एंशिएंट टाइम में इंडिया को नियरली 7 करोड़ रुपीस के जो सामान हुआ करते थे वो एक्सपोर्ट करते थे इंडिया को. 7 करोड़ रुपीस के सामान इंडिया में लाते थे और यहीं पर सेल करते थे. गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम. गवर्नर जनरल बेंटिक he came to India, he became governor general of India. तो he reported back home, उसने अपने लोगों को बताया कि bones of cotton weavers are bleaching the plains of India. The bones of cotton weavers, हड्डियाँ जो कॉटन वेवर्स की हैं, भारतीय जुलाहे जो हैं, जो कपड़ों को बुनते हैं, वेवर्स पे जुलाहे जो कपड़ों को बुनते हैं, वेविंग करते हैं, तो उनकी जो हड्डियां हैं, दे आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया, दे आर जस्ट गिविंग अ शाइनिंग टू द प्लेन्स ऑफ इंडिया. भारत की मिट्टी को वही चमका रहे हैं. सो यू शुड कम इन दिस ट्रेड ऑल्सो, आपको इस ट्रेड में भी आना चाहिए. द ब्रिटिश प्रॉस्पर्ड ऑन कंपनीज लूट. ब्रिटिश when British came here, so they started their loot in company also. कंपनी में भी उन्होंने लूट करना जारी रखा, उन्होंने चोरी करना जारी रखा. एंड while Indian industries began to die, और धीरे धीरे इंडियन इंडस्ट्रीज खत्म होती जा रही थी, मरती जा रही थी. Now sixth topic, dissatisfaction, page number 41. Education in India was in Persian and Sanskrit. At that time the Indian could get the knowledge of Parsi language and Sanskrit language only. Means Persian and Sanskrit, both the languages were here in India. They were popular in India. In 1835, an Englishman named Macaulay suggested a change. Lord Macaulay, when Macaulay came here, became Governor General. So he was said as Lord Macaulay, and he just suggested to British. उसने ब्रिटिश को सजेस्ट किया, उन्हें बताया कि यू शुड ब्रिंग अ चेंज इन द सोसाइटी इन इंडिया. आपको एक चेंज लाना चाहिए. व्हाट वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज. आपको भारतीयों को इंग्लिश लैंग्वेज की जानकारी देनी चाहिए, उन्हें एजुकेट करना चाहिए, उन्हें सिखाना चाहिए, शिक्षित बनाना चाहिए. द सेकेंड पर्सन सेड आई एग्री. यस आई एग्री, मैं सहमत हूँ. क्यों? बिकॉज if the Indian will know English language, so they will be good clerk. They will work properly for us. Means more they can do the work better than today. आज जैसा वो काम करते हैं वो हमारे लिए उससे अच्छा काम करेंगे, उससे बढ़िया कर पाएंगे. So they should have the knowledge of English language. English education produced clerks to whom the British gave pretty jobs under them. English education, when they started to give English education to the Indian people, so the Indian became good clerk. वो अच्छे मतलब they produce या English education produce good clerk. English education से अच्छे clerk बनने शुरू हो गए. And the British started to give them good jobs under them. और अपने नीचे उन्होंने उनको क्लर्क रखना शुरू कर दिया. ब्रिटिश ने क्लर्क रखना शुरू कर दिया, उनको अच्छी जॉब देनी शुरू कर दी. Incidentally, it also produced a new generation of intellectuals. और incidentally साथ साथ में एक और चीज हुआ. Fortunately you can say कि when the Indian got गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, जब उन्हें अच्छी जानकारी अंग्रेजी लैंग्वेज की मिलने लगी तो उससे उनकी बुद्धि भी बढ़ने लगी, या फिर उन्हें अच्छी जानकारियाँ, नई जानकारियाँ मिलने लगी, बौद्धिक क्षमता उनकी बढ़ने लगी. वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स. तो राजा राम मोहन राय सेड टू हिज पीपल दैट वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स. हमें अपने भाइयों को भी शिक्षित करना चाहिए, हमें उनको भी पढ़ाना चाहिए, उनको भी नॉलेज देना चाहिए. एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशन. और उन्हें अपने मटेरियल कंडीशन को इम्प्रूव करना चाहिए. वॉट एवर द प्रोडक्ट्स दे आर मेकिंग, दे शुड इम्प्रूव दोज थिंग्स, क्वालिटी ऑफ दोज थिंग्स. फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर grievances
टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, हमें इसके लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में सुझाव देना चाहिए। वी शुड गिव द सजेशन इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। नाउ बाय 1856 द ब्रिटिश हैड कन्क्वेयर्ड द होल ऑफ इंडिया। बाय 1856 तक द ब्रिटिश कन्क्वेयर्ड द होल ऑफ इंडिया, लगभग पूरे भारत पर उन्होंने आधिपत्य कर लिया था, उन्होंने कब्जा कर लिया था। They cared little about needs of Indians, but they were not good. The British were not good. They were not caring about their people. Means who people? Indian people. They were not caring about Indian people. Our kings have become puppets. Puppets means पुतला होता है बेटा, कठपुतली होता है। Our kings have become. One Indian is saying to another that our kings have become puppets. हमारे राजा कठपुतली बनकर रह गए हैं। They are just the things run by other person. They are the things, वो ऐसी चीजें बन गए जो दूसरे लोगों के द्वारा उनको चलाया जा रहा है। And we have lost our old jobs, और हमने अपनी पुरानी नौकरियां खो दी हैं, हमें हमारी पुरानी नौकरियां नहीं हमारे पास हैं। And lands, और जमीनें भी। They are converting our brothers, वे हमारे भाइयों के धर्म को भी बदल रहे हैं। They only talk, do something to drive them out. Now all the people came together, all the Indians came together and made a plan that we should, they suggested that we should move them out, हमें उनको बाहर निकालना चाहिए। We should move them out of India, हमें उन्हें भारत से बाहर करना चाहिए। Because they are just talking, वे केवल बात कर रहे हैं, doing nothing for our betterment, हमारे अच्छाई के लिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं। Now 7 the sparks, चिंगारियाँ, विद्रोह की चिंगारी 1855 to 57। Taxes continue to ruin the peasant. Peasants means farmers, किसान। The taxes continue to ruin the peasants. Taxes जो heavy taxes लगा रहे थे ब्रिटिश, तो due to that the Indian farmers started to ruin, वो बर्बाद होने शुरू हो गए। In Bengal, the Santals means type of tribes were there, एक तरह के कबीले वाले थे वहाँ पर संथाल। तो who lost their lands, उन्होंने अपनी जमीनें खो दी under new land rules, जो नए लैंड रूल्स आए उनके अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी जमीनें खो दी, उनकी जमीन खत्म हो गई, became desperate, और वो भगा दिए गए, भूमिहीन कर दिए गए। In 1855 they rose in rebellion and massacred Europeans and their supporters alike. Now in 1855 1855 में 1855 में they rose in rebellion, वो क्रांतिकारी बन गए, उन्होंने विद्रोह स्टार्ट कर दिया और ब्रिटिश और उनके सपोर्टर्स के ऊपर उन्होंने अटैक स्टार्ट कर दिए, अटैक करने शुरू कर दिए। Discontent was brewing in East India Company's army too. Discontent जो अधैर्य था, असंतोष था, वो धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर भी बढ़ रहा था। It was just growing in that army also. The white soldiers get huge pay. One Indian soldier is saying, Sipahi is saying that the British soldiers are getting more pay than us. हमसे ज़्यादा सैलरी उन्हें दी जाती है। And mentions to live in servants, और उन्हें mentions to live in, और उन्हें महल दिए जाते हैं, क्वार्टर दिए, बंगले दिए जाते हैं उनको रहने के लिए। While we get a pittance and slow promotion, जबकि हमें बहुत थोड़ा सी सैलरी दया के रूप में दी जाती है, दया पूर्वक हमें दी जाती है। एंड स्लो प्रमोशन, और हमारा प्रमोशन भी नहीं होता या बहुत धीरे होता है। द अंग्रेज आस्क्ड अस टू क्रॉस द सी विच इज अगेंस्ट आवर रिलीजन। इंडियन कस्टम के अकॉर्डिंग क्या था कि हमें समुद्र को पार नहीं करना है। तो अनदर इंडियन सोल्जर इज सेइंग कि they are sending us to cross the sea, वे हमें समुद्र पार करने के लिए बार-बार भेजते हैं। They are sending us to another countries to fight, and this is against our religion, ये हमारे धर्म के खिलाफ है। Who is the टोपी वाला to abolish our old age custom? Who is टोपी वाला? Means the अंग्रेज ऑफिसर, the British officers were said as टोपी वाला by Indian। तो इंडियन कहते हैं, इंडियन सोल्जर्स कहते हैं कि कौन टोपी वाला कौन होता है, हमारे पुराने कस्टम को तोड़ने वाला, उसको नष्ट करने वाला। We must drive out the अंग्रेज, हमें अंग्रेजों को बाहर निकालना होगा। सिपाही मंगल पांडे अटैक द adjutant of the regiment and was executed। सिपाही मंगल पांडे, one soldier means you can say one patriot was Mangal Pandey, and he just started to oppose the British officers, and he
अटैक्ड ऑन वन ब्रिटिश ऑफिसर एंड एक्सक्यूटेड, और उन्हें फांसी दे दी गई, उन्हें सजा दी गई। Thousands of other sepoys revolted, and after that thousands of other Indian soldiers revolted. दूसरे हजारों सैनिकों ने, भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। They were stripped of their uniforms, उनके यूनिफॉर्म फाड़ दिए गए। Humiliated and put in iron, उन्हें अपमानित कर दिया गया और उन्हें जेलों में डाल दिया गया, मतलब उन्हें उनके हाथों में हथकड़ियां पहना दी गई। Few Englishmen had cared to understand Indian custom or the people's mind. Few Englishmen, बहुत कुछ अंग्रेज ऐसे थे जो केयर टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम, जो भारतीय रीति रिवाजों को समझ पा रहे थे और उनके लोगों की बातों को समझ पा रहे थे। ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, उनमें से एक व्यक्ति कहता है कि ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, घमंडी ब्राह्मण, डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट इज मेड अप ऑफ फैट ऑफ काउज एंड पिग। एक सोल्जर दूसरे सोल्जर से कहता है, दूसरे ब्राह्मण सोल्जर से कहता है कि डू यू नो, क्या तुम्हें पता है कि जो बुलेट के ऊपर कवर लगा होता है, यू आर बाइटिंग, जिसको तुम अपने दांतों से खींचते हो, वो गौ मांस और सुअर के मांस से बना होता है, उसकी चमड़ी से बना होता है। व्हाट, क्या? द व्हाइट मैन हैड डिसीव्ड अस टू, one Muslim soldier is saying that white men have deceived us too, उन्होंने हमारे साथ भी छल किया है, जैसे हिंदुओं के साथ ब्राह्मणों के साथ छल किया है, वैसे हमारे साथ भी किया है। Soon chapatis were sent from village to village to tell people that their emperor would want their services. Emperor Bahadur Shah Jafar, means बादशाह बहादुर शाह जफर was emperor at that time in Delhi. दिल्ली में सम्राट बादशाह बहादुर शाह जफर वहाँ पर शासन किया करते थे। तो चपातीज वर सेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज, एक गांव से दूसरे गांव चपाती रोटी बना बना करके भेजी जाने लगी इस विद्रोह को आगे बढ़ाने के लिए कि हमारे एम्परर हमारी सर्विस चाहते हैं और वो विद्रोह को पूरी तरह से करना चाहते हैं। Yes, all my village men will be ready. One person is saying, giving message to another person, one villager is giving message to another villager that we all are ready. Okay, we all are ready for revolution. हम विद्रोह के लिए तैयार हैं। Similarly, lotus flowers circulated among Indian soldiers. भारतीय सैनिकों के बीच में लोटस भी सेंड किया जाने लगा, डिलीवर किया जाने लगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाने लगा। लोटस was, you can say, symbol of revolution. The masses gave all the help to shelter and to the patriots. masses जो भीड़ थी, जो कंट्रीमैन थे, उन्होंने पैट्रियट्स को, देशभक्तों को शेल्टर देना, शरण देना शुरू किया। Now, revolt 1857. Then there was a violent outbreak at Meerut. Then at Meerut in UP की मेरठ में एक विद्रोह हो गया। The sepoys marched to Delhi. All the sepoys, all the Indian soldiers marched to Delhi directly. Long live our Emperor Bahadur Shah. They started to shout that long live our Emperor Bahadur Shah. Bahadur Shah Jafar, Badshah, Jai Ho. The rebellion spread wider. सारे विद्रोही दूर दूर तक फैलते चले गए। They spread all over the country. Many landlords had lost their land. बहुत सारे लैंडलॉर्ड जो थे, जमींदार थे, उन्होंने अपनी जमीन खो दी थी because of the British policies, because of British rules and regulations. And they were sold, और वो सभी इकट्ठा हो गए थे। So means collect हो जाना, इकट्ठा होना। The white man's rule must end. Now the white man's rule, British rule must end. अब British rule का अंत हो जाना चाहिए। Yes, we will help you. हाँ, हम आपकी मदद करेंगे, सहायता करेंगे। The last topic, page number 44. The fight for freedom 1857. भारत का स्वाधीनता संग्राम 1850, पहला स्वाधीनता संग्राम। Many former rulers like बेगम हजरत महल of Lucknow were bitter. So many rulers were, so many you can say, so many kings were dethroned. उन्हें गद्दी से हटा दिया गया था। Taken their authorities, उनकी पावर को, उनकी अथॉरिटी को ले लिया गया था। So like बेगम हजरत महल was also bitter. वो भी बहुत ज़्यादा annoyed थी, गुस्से में थी, because she was also dethroned from Lucknow. The white man has taken away my kingdom. Begum Hazrat is saying that white man has taken my throne and my kingdom. उन्होंने मेरी गद्दी को, मेरे साम्राज्य को ले लिया है। Popular leaders like Maulvi Abdullah of Faizabad told the people. One person was there, Maulvi Abdullah of Faizabad. He said to his people, "Rise, brothers, rise. उठो भाइयों, उठो."
द अंग्रेज इज रूइनिंग आवर लैंड, अंग्रेज ब्रिटिश दे आर डिस्ट्रॉइंग आवर लैंड, वो हमारी मिट्टी को, हमारे देश को वो नष्ट कर रहे हैं। अब्दुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान ने तात्या टोपे को बताया कि वी शुड हैव पेशवा नाना साहब एज आवर लीडर, हम नाना साहब को अपना लीडर बना लेंगे, पेशवा नाना साहब को अपना लीडर बनाएंगे इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इस युद्ध में। द पैट्रियट फाउंड अपॉन द ब्रिटिश, उन्होंने आक्रमण करना शुरू, भारतीयों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया ब्रिटिश के ऊपर, एंड फॉट फिश्ड बैटल्स ओवर नॉर्थ इंडिया, पूरे नॉर्थ इंडिया में युद्ध लड़े गए। 80-year-old कुंवर सिंह ऑफ बिहार received the bullet in his breast, 80 साल के कुंवर के साहब के हाथ में, कलाई में एक गोली लगी, and he just cut his hand and threw it to गंगा मैया, उन्होंने उसे हाथ को काटकर गंगा मैया में समर्पित कर दिया, and said, Mother Ganga, this is my last offering to you, this is my last offering to you, ये मेरा अंतिम बलिदान है आपके लिए, ये मेरा अंतिम समर्पण है। Thanks class. Now the lesson is over. In next class we will discuss about question answer of this lesson. Thank you.